Yes, sir. We can see you now. I hope you can hear us. Hi, am I audible? Yes, yes, yes. So, Oh, finally. Thank you. I'm so sorry for all the inconvenience. Okay. yes, yes. So, sir, just there is one question by Dr. Balchandra. Let's start with that. He mentions that, my mother died with colon Mm-hmm. cancer at 72 years. What precautions and Mm-hmm. investigations should I undertake? Okay. Your question is valid in terms of कि colon cancer और colorectal cancer जो कि बड़ी आंतों का कैंसर है is something which can be hereditary. But the age at which your mother got diagnosed with cancer is 72. Whenever it is less than 50 years or at least less than 60 years, then only there is risk of hereditary genetic basis. एक मतलब मदर से बच्चे के अंदर जाने का रिस्क ज्यादा रहता है. So at the age of 72, it is most probably a sporadic cancer. मतलब she was the first case. Although all you need to know is know about the symptoms of कोलॉन कैंसर. अगर आपको सिम्टम्स के बारे में पता है तो बस आप उन सिम्टम्स पे ध्यान रखिए. अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो यू नीड नॉट अंडरगो एनी इन्वेस्टिगेशंस. इसके अलावा अगर इफ यू आर टू मच वरी then the only thing that you should know is that you can get a colonoscopy. अगर एक colonoscopy normal रहती है तो then you're free. उसको ज्यादा से ज्यादा once in 3 to 5 years रिपीट कर सकते हैं if you are worried. Otherwise, if that is normal, then there is nothing to worry. अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस में बात करेंगे, so two to three things that you should do. One is if you are a smoker, please avoid smoking because that increases the risk of colorectal cancer. Secondly, अगर आप मतलब if you switch to a healthy vegetarian diet that prevents the risk of colorectal cancer, increase more and more high fiber diet, vegetable fruits in your diet. That would help, and if possible avoid red meat. That is something which is advisable. तो ये दोनों important है. And third, if you are obese, then try to involve yourself in some sort of physical activity. अगर आप physically active रहेंगे so then there is less risk of this cancer. So these are the three simple advices that I would suggest you to do. But at the age of 72, if she was diagnosed, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है because most probably you are not at risk of developing those cancers. Beautiful. Thank you so much, sir. So now coming back to our topic, sir, what are the most common cancers that every man and woman should know? So, Okay. I- So first of all, I would come to the question of most common cancers in women. So most common cancer in women is breast cancer. तो पहले ये माना जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ एल्डरली एंड रिच, बट इन मॉडर्न एरा इट इज नॉट द सेम. इंडिया में अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर. इनफैक्ट इन आर ओपीडी 10 में से 3 फीमेल्स को जो हमारे कैंसर ओपीडी में आते हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर रहता है. सो 30% ऑफ आर फीमेल कैंसर ओपीडीज आर विद just breast cancer. So it is so common. The second most common cancer in females is cervix cancer, which is just opposite as a disease of poor females, and मोस्टली इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन है. इंडिया इनफैक्ट इज द सर्विक्स कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्विक्स कैंसर के केसेस देखे जाते हैं. तो ये दोनों मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं in India in females. If we come to cancer in males, the most common cancer is oral cancer, मुंह का cancer. Head neck cancers are the most common, and that is because of the habit that we have is tobacco. And second most common is lung cancer, and which is mostly attributable to smoking. So these are the two most common cancer in males and females. so जिस तरीके से आपने बोला कि the most common cancers in women is breast and cervical cancers. क्या Yeah. ऐसा कर सकते हैं women to for its early detection या prevention very clearly?
ओके, तो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन कि हम क्या कर सकते हैं, पहले वी शुड नो इज कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, किन में रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो पहली जो एक कॉमन मिथ जो इन कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करेंगे, तो लोगों के मन में ये होता है कि दैट इट इज अ डिजीज ऑफ द एल्डरली, ओल्डर एज ग्रुप में मिलता है, या फिर अगर फैमिली में कोई मेंबर इन्वॉल्व है तो ही उन्हें रहेगा। बट टू बी फ्रैंक, इट इज नॉट द सेम। इनफैक्ट इट कैन, मतलब अगर हम देखें, हर साल लगभग 10 से 12 हजार केसेस जो होते हैं फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के, वो लेस देन 40 इयर्स एज ग्रुप में मिलते हैं। एंड 50% और मोर देन दैट पेशेंट्स में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं मिलता है। और अगर हम हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, मतलब अगर फैमिली में किसी को, मदर के सिस्टर को अगर कैंसर है, तो ऐसे केसेस सिर्फ 10% होते हैं। 90% केसेस में जो हमें मिलते हैं, उनके फैमिली में कोई भी मेंबर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये जो एक पहली 3 चीजें हैं, ये हमें हर किसी को पता होना चाहिए, so that everybody should know that they are at risk of breast cancer, and that is why they should know. तो ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कल्प्रिट होता है, वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जब आपके पीरियड्स जल्दी स्टार्ट होते हैं, लेस देन 10 इयर्स ऑफ एज, एंड कंटिन्यू मोर देन बियॉन्ड द 50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, तो उसमें एस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जो फीमेल्स लेट प्रेग्नेंट होती हैं बाय द एज ऑफ 35 और मोर देन 35, उनमें, या फिर जिन फीमेल्स को कोई भी बच्चे नहीं होते, उनमें भी यही हार्मोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ता है, जिसके कारण उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर फीमेल्स अल्कोहल यूज करती हैं, तो अल्कोहल भी रिस्क बढ़ाता है। उसके अलावा अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इज ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण जो हमारा बाहर जो फैट रहता है, उसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है उन फैट में बाय कन्वर्जन, जिसके कारण भी रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके मदर या फैमिली में सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपके अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन बाकी लोगों के कंपैरिजन में एटलीस्ट 3-fold रिस्क बढ़ जाता है। सो दीज आर मेनली द रिस्क फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम इसी कंटेक्स्ट में बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन आर कंट्रोल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो अगर हम फैक्टर्स जो आपके किसी कंट्रोल में नहीं है, इज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल दैट यू आर अ फीमेल। आपका अगर पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हुआ है, या आपका पीरियड्स लेट तक चल रहा है, या आपके फैमिली में कोई मेंबर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रहा है, what you can control is that if you are physically active, आप अपने ओबेसिटी को, मोटापे को कम कर सकते हैं। अगर आप ये कोशिश करें कि आप बच्चों बाय लेस देन 35 इयर्स एज, और इफ पॉसिबल 30 इयर्स से पहले की एज में फर्स्ट चाइल्ड हो जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने बच्चे को मोर देन 1 ईयर ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, योर आपका वीडियो बंद हुआ है, जस्ट एडिंग टू दिस। तो जिस तरीके से आपने बोला कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और किन किन चीजों का हर वुमेन को ध्यान रखना चाहिए, तो अब जैसे आपने रिस्क फैक्टर्स बताए, अब डिस्पाइट अगर इन रिस्क फैक्टर्स का कोई लेडी ध्यान रख रही है और सब कुछ कर रही है, पर तभी भी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ती जा रही है, रिस्क किसी को भी हो सकता है। सो क्या आप इसके प्रिकॉशंस बता पाएंगे कि फॉर एवरी वुमेन टू टेक केयर ऑफ? तो बिफोर आई गो ऑन टू प्रिकॉशंस, सबसे पहले उन प्रिकॉशंस के लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वार्निंग साइंस, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है, तो यू गो टू द डॉक्टर, टू द स्पेशलिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। So the first thing and most important thing जो आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दिस, एंड जब आप घर जाएं तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखिएगा, इज डू नॉट इग्नोर एनी लम्प। ब्रेस्ट में होने वाली किसी भी गठान को नजरअंदाज ना करें, वो चाहे पेनफुल हो, चाहे वो पेनलेस हो, चाहे वो दर्दनाक हो या दर्द रहित हो, प्लीज उसे इग्नोर ना करें। सारे ब्रेस्ट कैंसर की जो लंप इनिशियली होती है, वो
पेनलेस होती है, इट डज नॉट हैव पेन, सो उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। खासकर अगर गठान थोड़ी भी कठोर है, हार्ड लग रहा है, तो उसे जरूर दिखाएं। उसके अलावा अगर निप्पल से कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लड या फिर डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसे नजरअंदाज ना करें। स्किन, जो ब्रेस्ट की स्किन है, उसमें अगर कोई रेडनेस आ रही है या फिर उसमें कोई गड्ढापन हो रहा है जिसे हम डिम्पलिंग बोलते हैं, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा आपके जो आर्म पिट्स है ना, आर्म के नीचे जो एरिया होता है, अगर वहां पे आपको कोई गठान दिख रही है, तो उसे भी नजरअंदाज नहीं करना है, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी वन मैनिफेस्टेशन और वन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कुछ कॉमन ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स रहते हैं जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ कि हम कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मोडालिटीज हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से पहले उसे उसे प्री कैंसर स्टेज में ही हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जैसे ही आपकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होती है, एंड स्पेशली आप अगर अपने बच्चे को एज 18 ईयर्स से ज्यादा है, तो उन्हें ये चीज जरूर सिखाएं कि वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार मिरर के सामने या वाइल टेकिंग बात अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है, हर एक पार्ट को, और देखना है कि इनमें से बताए गए कोई भी सिम्टम्स अगर उन्हें दिखते हैं, कोई गठान, कोई रेडनेस, कोई डिम्पलिंग, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या आर्मपिट्स के एरिया में कोई स्वेलिंग आ रही है, तो प्लीज उसे तुरंत किसी भी ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट को या किसी एक्सपर्ट को जाकर दिखाना है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर हर एक व्यक्ति जो इस टॉक को सुन रहा है, आप जिनसे मिलते हैं, उन्हें अगर आप इस सिम्टम के बारे में बताएंगे, इस चीज के बारे में, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को हम पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे, अगर वो इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। सेकेंड चीज होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है, तो आप साल में एक बार कोई भी एक दिन चूज करके किसी भी एक्सपर्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर किसी कैंसर एक्सपर्ट को जाकर दिखाएं, और उन्हें उनसे ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराएं। इसमें वो पीछे अंदर डीप टिश्यूज में अगर कोई गठान होगी या कुछ दिक्कत होगी, तो वो उसे डायग्नोज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने एक इन्वेस्टिगेशन जिसने बाहर फॉरेन कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को काफी कम किया है, इज मैमोग्राफी। मैमोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का एक एक्सरे। अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है, तो साल में एक बार या एटलीस्ट 2 साल में एक बार आपको मैमोग्राफी कराना है। मैमोग्राफी बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, इट माइट बी अ लिटिल बिट डिस्कम्फर्टिंग, बट दैट इज एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। उससे हम छोटे से छोटे नोड्यूल, छोटे से छोटे स्पॉट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ये नॉर्मल प्रोटोकॉल हो गया है कि हर साल फीमेल्स का मैमोग्राफी होता है, इसलिए वहां जो 90-95% ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होते हैं, वो स्टेज 1 में या उससे पहले प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ भी इंडिया में ये चीज चालू करनी है, इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को मोस्टली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम उससे क्योर पा पाएंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज सेल्फ एग्जामिनेशन, जो आपको हमेशा करते रहना है, वंस इन अ मंथ आफ्टर द एज ऑफ 18। सेकेंड इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आपको 30 इयर्स के बाद में किसी एक स्पेशलिस्ट को मिलना है, वंस इन अ ईयर। एंड आफ्टर द एज ऑफ 40, वंस इन अ ईयर मैमोग्राफी कराना है, जहां भी आपके नियर बाय सेंटर में, और उससे आप उसको बहुत अर्ली स्टेज में या वहां कोई भी स्पॉट दिखता है, उसे आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सर बताया कि कई अर्ली 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 ब्रेस्ट डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है पोस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, हर वुमेन को ये करना चाहिए। क्या इसमें क्या चैलेंजेस रेगुलरली आप देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो पाता? क्या ऐसे पेशेंट्स किन चीजों को नहीं कर पाते हैं जिससे अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता?
मेरी प्रैक्टिस में मैं सबसे कॉमनली चीजें देखता हूँ या लोगों की कंप्लेंट सुनता हूँ, वो यही होता है कि उन्हें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। सेकेंडली, बिकॉज इट इज पेनलेस, मैंने बताया कि ब्रेस्ट में होने वाली कोई भी गठान को नजरअंदाज नहीं करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। तो इसीलिए लोग उसे इग्नोर करते हैं, बिकॉज इट इज पेनलेस। पेनलेस है तो वो उसे नजरअंदाज करते हैं, कुछ नहीं उसे बड़ा होने देते हैं, और फिर एक टाइम के बाद उन्हें लगता है कि नहीं अब पेन स्टार्ट हुआ, एंड देन दे गो टू द स्पेशलिस्ट। तो ये एक हमारे यहाँ पे चैलेंज है। थर्डली, बिकॉज मैमोग्राफी अभी भी लोगों को पता नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स डू नॉट अंडरगो मैमोग्राफी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैमोग्राफी से रिलेटेड लोगों को, तो यहाँ पे कॉमन लोगों को, हम चेक ही नहीं करवाएंगे तो हम ठीक रहेंगे, या हम इससे मतलब चेक ही नहीं करवाना चाहते हैं, कैंसर का नाम सुनते हैं, बट इन हमें धीरे धीरे ये समझना है कि कैंसर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप डायबिटीज है, वन फाइन डे इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे हर कोई डायबिटीज है। हो सकता है आप भी डायबिटीज, आप जब तक चेक नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और जब पता चलता है उसको हम प्रिकॉशंस लेके वी कैन कंट्रोल इट। कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर भी इसी तरीके का है, आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल के 8 में से 1 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो हमें अगर पता करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें से अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में डिटेक्ट हो जाए, अगर या होना है तो अर्लीस्ट स्टेज में पता चल जाए, तो आपको मैमोग्राफी करना बहुत जरूरी है आफ्टर द एज ऑफ 40। एक सिंपल टेस्ट जिससे हम इस कैंसर पे पूरी तरीके से क्योर करने का पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बोला कि इस विथ स्टैटिस्टिक्स ये इसके फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। हर विमेन जो हमें सुन रही है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जो मेन भी सुन रहे हैं, प्लीज अपने अपने क्लोज लव वंस को प्लीज ये बताइए कि किस तरीके से हम अपना ध्यान रख सकते हैं। सो सेकंड सर, आपने सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर बताया था सर्वाइकल कैंसर। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता पाए। ओके, तो जैसे अब ब्रेस्ट कैंसर में हमने एक हार्मोन को रिस्पॉन्सिबल बताया है। सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर में द कल्प्रिट इज अ वायरस। जैसा कि कोविड वायरस के बारे में आपने सुना, उसी तरह एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो स्टार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में वहां पे जाके अपना प्लेस लेता है। 90% फीमेल्स में ये जो वायरस का इन्फेक्शन है बॉडी से क्लियर कर देती है। 10% के जो अनफॉर्चुनेट फीमेल्स है उनमें ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 30 years, एंड आई रिपीट ओवर अ पीरियड ऑफ, आगे इन्फेक्शन के 10 से 30 साल के बाद में जाके कैंसर में डेवलप होता है। और यही कारण है कि ये एक दूसरा कैंसर है जिसे हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें वायरस इन्फेक्शन होता है, तो वायरल इन्फेक्शन किन लोगों में ज्यादा ज्यादा कॉमन है या किन लोगों में ज्यादा, तो पहले जो इंडिया में काफी कॉमन है, अर्ली मैरिज, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ मैरिज होना, मल्टीपल बहुत सारे बच्चे होना, इसके अलावा पुअर वेजाइनल हाइजीन रखना, दूसरे इन्फेक्शंस भी इस वायरस को वहां पे जगह देते हैं, जिसके कारण इसमें इसका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग, बीड़ी या किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके अंदर ये कैंसर के होने का रिस्क बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इंडिया में इसके बारे में जागरूकता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पेशेंट्स उसके सिम्टम्स को बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं, और धीरे 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 जब वो बढ़ता है तब उसके बाद में जाके दिखाते हैं। यही कारण है कि ये कैंसर आज भी इंडिया में इतना कॉमन है और एडवांस स्टेजेस में ज्यादा देखा जाता है। जिस तरीके से आपने बताया कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन नहीं हो पाता इसका, और इसी वजह से इसका है ना बहुत ज्यादा कॉमन है ये कैंसर। तो क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, या क्या इसके रिस्क क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर हो तो इंसान प्रिकॉशनरी हो जाए, क्योंकि ये टाइम भी इतना लेता है डेवलप होने में। 10 to 30 years इज अ लॉन्ग ओके, टाइम। तो ओके,
तो जैसा मैंने ब्रेस्ट कैंसर में बोला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम दैट यू शुड नो इज लंप इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में होने वाली किसी भी गठान को नजरअंदाज ना करें। इसी तरह सर्विक्स कैंसर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, कोई भी डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जो बदबूदार डिस्चार्ज अगर वजाइना से आ रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। उसके अलावा कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे कि नॉर्मली महीने महीने में जो होने वाली ब्लीडिंग की जगह पे अगर ब्लीडिंग इन बिटवीन आती है या फिर पीरियड्स बंद होने के बाद में, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं, मीनोपॉज के बाद में होने वाली ब्लीडिंग जिसे हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ये सर्विक्स कैंसर के या उसके प्री कैंसर स्टेज के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे डिजीज बढ़ता है वैसे वैसे या तो यूरिन में बार बार यूरिन होना, जलन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर एक बैक एक, पीछे कमर का दर्द जो कि ठीक नहीं हो रहा है या पैरों में जा रहा है, तो उसमें भी ये भी सर्विक्स कैंसर, एडवांस सर्विक्स कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। तो दीज आर द सिम्टम्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जिस तरीके से आपने बताया कि सर ये सारे सिम्पटम्स होते हैं, तो अगर किसी को भी ये सिम्पटम्स होते हैं, तो किस तरीके से उसको इसके साथ डील करना चाहिए? सॉरी, यू कैन यू रिपीट, आपका वॉइस जो है हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। यस, यस। सर मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को भी ये साइंस एंड सिम्पटम्स हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किसको अप्रोच करना चाहिए, अगर आप बता पाएँ? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible, but video. हाँ, now it is fine. ओके, फाइन। आई एम रियली सॉरी, आप क्या वापस से एक बार अपने क्वेश्चन को हाँ, हाँ। रिपीट कर सो सकते सर, हैं? आई वाज जस्ट रिपीटिंग कि आपने जिस तरीके से रिस्क फैक्टर्स हमारे साथ शेयर किए, साइंस एंड सिम्टम्स शेयर किए कि क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, अगर किसी को भी ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो किसको अप्रोच किया जाए और किस तरीके से फर्दर प्रोग्रेशन होता है, मतलब इसका डिटेक्शन होता है? ओके, सो बिफोर आई प्रोग्रेस टू कि पहले सिम्टम्स हों, मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हम इससे, दिस इज वन ऑफ द कैंसर्स जिसको हम स्क्रीन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग मोडालिटीज रहती हैं जिससे हम कैंसर होने के पहले ही प्री कैंसर स्टेज में, जब यहाँ वहां पे ये वायरस है, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इसको जस्ट कंपेयर करिए कोविड सिनेरियो से। वी डोंट वांट कि हमारे जो भी कोविड के पेशेंट्स थे वो एडवांस स्टेज में या फिर बहुत ज्यादा लंग में इन्फेक्शन के साथ जाएं। हम क्या करते थे, हमें जैसे ही थोड़ा सा भी डाउट होता था या फिर हमें लग रहा था कि ये एज ग्रुप है या एक सोसाइटी है जहां रिस्क ज्यादा है, हम उन्हें स्क्रीन करते थे थ्रू कोविड या फिर आरटीपीसीआर या कोविड एंटीजन के। सेम वे हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम इस कैंसर को बिफोर डेवलपिंग कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे आसान तरीका है इस पैप्समियर। पैप्समियर का क्या मतलब होता है? जो हमारा सर्विक्स होता है, सर्विक्स मतलब गर्भाशय का मुख या फिर जहां यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। वहां से हम एक सिंपल से ब्रश के माध्यम से वहां से कुछ सेल्स को एक स्लाइड पे रखते हैं और उसे हमारे पैथोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। पैथोलॉजिस्ट देख के बता सकते हैं कि वहां कोई एबनॉर्मल सेल्स है या नहीं है। इसे हम पैप्समियर बोलते हैं। इसके साथ में हम वहीं से इसको को जैसे हम कोविड की टेस्टिंग के लिए भेजते थे और आपके गले के पीछे वाले हिस्से से एक स्वाब लिया जाता था, इसी तरीके से सर्विक्स से एक स्वाब लेके उसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी जिसे बोलते हैं, जो इसका कल्प्रिट है, जो इसका कारण है, उसे हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू द सेम टेक्निक जिसे हम एचपीवी डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये दो टेक्निक है जिससे हम कैंसर को पहले ही डिटेक्ट, हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ही फीमेल की एज 21 ईयर्स होती है और उनकी एक्टिविटी चालू हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो गई है या फिर नहीं भी हुई है, तो भी हम लोग 21 ईयर्स के एज ग्रुप से स्टार्ट होके एवरी 3 इयर्स एडवाइस करते हैं पैप्समियर करना। ठीक है,
पैप स्मीयर के माध्यम से हम कैंसर को बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुई एक टेक्निक। दूसरा है कि हम कैंसर को होने ही ना दें। तो अगेन कोविड का एग्जाम्पल लेके हम सेम, जैसे हमारे पास आज कोविड की वैक्सीन आ गई हैं, इसी तरह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्हें हम अर्ली एज में, मतलब 9 साल की उम्र के बाद से स्टार्ट दे सकते हैं। 3 डोज हमें देना होता है। और अभी मार्केट में इंडिया की बनी हुई सेम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई, उन्होंने सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन भी बनाई, और उसको हम सर्वावैक बोलते हैं, जो कि इंडिया की बनी हुई काफी चीप वैक्सीन है। और इसे हम 3 डोज अगर देते हैं तो आगे जाके बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको कभी सर्विक्स कैंसर नहीं होगा। तो अगर आपके बच्चे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 26 years, for 30 years, या फिर इवन आफ्टर द एज ऑफ 30 years भी आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी अगर हम वैक्सीन देते हैं तो इट इज मच मोर एफिशिएंट। इवन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी अगर वैक्सीन दिया जाए तो भी ये एफिशिएंट होता है काफी हद तक। तो दिस इज वन ओनली वन कैंसर जिसमें हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो अगर कोई आपके पहचान में है या फिर आपने अभी तक इम्यूनाइज नहीं हुए हैं, तो प्लीज जाके ये वैक्सीन लीजिए या अपने बच्चों को दीजिए। इससे एक कैंसर से आप उन्हें पूरी तरीके से फ्री कर सकते हैं। सो दो टेक्निक, एक है कैंसर की वैक्सीन एंड सेकेंडली पैप्समियर, सिंपल टेस्ट जिससे हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज में या कैंसर होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं या उसे पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सर यहाँ पे यशवी एक क्वेश्चन पूछ रही है। शी इज आस्किंग दैट एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर आप दे पाएं, एंड विच वन इज बेटर, गार्डेसिल और गार्डेसिल 9? ओके, तो बेसिकली हमारे पास मार्केट में 4 वैक्सीन अवेलेबल हैं। पहले दो आए थे जिसमें गार्डासिल था, गार्डासिल 9 था, बट अभी लेटेस्ट में इंडिया की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज सर्वावैक, विच इज इक्वली इफेक्टिव, विच इज मच लेस कॉस्टली, अराउंड 400-500 रुपीज की वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आप इससे पहले बोलेंगे इंडिया में जो फॉरेन वैक्सीन हैं, उसमें गार्डासिल 9 इज मच मच बेटर। it is uh, it is effective against majority of the HPV related virus, जो उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उससे इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जैसे हमने कोविड वैक्सीन के बाद थोड़ा बहुत फीवर, मैलेज, ऐसा जो हमें सिम्टम्स हुए थे, सेम वे उसके भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं फॉर अ डे, बट अदरवाइज देर आर नो एज सच कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक्सेप्ट प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं देना है, उससे अलावा। एंड फ्रॉम द एज ऑफ 9 अप टू द एज ऑफ 26 और बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी ये वैक्सीन अवेलेबल है, एंड यू कैन टेक 3 डोजेस। फर्स्ट डोज एट 0, देन 1 महीने के बाद, एंड देन 6 मंथ्स। 3 डोजेस हमें वैक्सीन के देने हैं, एंड विद दैट आपका जो इम्यूनिटी है इज गुड इनफ कि आपको आगे जाके ये वायरस जब आएगा भी या इन्फेक्शन होगा भी, तो भी आपको कैंसर होने का चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाता है या ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो सर इट्स ग्रेट कि इसकी वैक्सीन है, पर क्या इसके चैलेंजेस होते हैं इसके अर्ली डिटेक्शन में, अगर आप रेगुलरली आपके ओपीडी में अगर आप डिस्कस कर पाए? पहली बात तो जैसे हमें कोविड वैक्सीन जब आया था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस कम था, उसके मिथ्स ज्यादा थे, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है ना, लोगों को लगता है कि शायद वो कैंसर फ्री हैं, उन्हें उनके अंदर कैंसर के होने का रिस्क नहीं है, या वो तो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, या ये है। बट मतलब उन्हें ये जानना जरूरी है दैट एवरीबडी इज एट रिस्क ऑफ, every female is at risk of this cancer. So if there is a vaccine available, प्लीज 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 टेक इट। ठीक है, एक सिंपल टेक्निक, एक सिंपल तरीका जिससे हम इस कैंसर को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं।
देन कमिंग टू पैप्समियर इज इंडिया में इन जनरल जो पैप्समियर के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। अगर हम हमारे रिलेटिव्स में भी एडवाइस करते हैं तो दे आर लिटिल बिट हेजिटेंट टू गेट दिस टेस्ट डन। वो सोचते हैं कि नहीं चलो जब तक कुछ है नहीं तब तक तो है, बचे हुए हैं तब तक है, बट दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। अगर मोस्ट ऑफ द मतलब हमारे अगर हम हमारे पेरेंट्स और उनकी जनरेशन में देखेंगे तो सारे रिस्क फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे, अर्ली मैरिज, मल्टीपल चिल्ड्रन, ना ये सारी चीजें बहुत कॉमन थी। और इसके कारण वी शुड एक्चुअली एडवाइज देम टू गेट अ पैप स्मीयर डन। 3 साल में एक बार करना है, और अगर आप एचपीवी टेस्ट के साथ करते हैं तो 5 साल में एक बार करना है। एंड दैट इज वन थिंग, आप एक कैंसर के बारे में यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, एंड सिंपल टेस्ट से हम ये कर सकते हैं। तो लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस का बहुत प्रॉब्लम है, दे रन अवे फ्रॉम दीज टेस्ट, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसके बारे में जानेंगे तो शायद पता चल जाए, शायद डिटेक्ट हो जाए, तो फिर और कुछ करवाना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग, है ना। एंड विच धीरे धीरे समय के साथ में वी बिलीव कि एक्सेप्टेंस इम्प्रूव होगा। तो सर जिस तरीके से हमने डिस्कस किया अभी, हमारे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में, आपने बोला मेन में द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इज हेड एंड नेक कैंसर्स। अगर आप या थोड़ा सा उसके बारे में भी बता पाए कि क्या क्या किस तरीके से होते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स, और उनके क्या साइंस एंड सिम्टम्स, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे फीमेल्स में हम एक हार्मोन को कल्प्रिट मान रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर में, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फैक्टर नहीं रहता है। सर्विक्स कैंसर में एक वायरल इन्फेक्शन है। हेड एंड नेक कैंसर या फिर ओरल कैंसर में द कल्प्रिट इज टोबैको। 90 to 95% ऑफ हेड नेक कैंसर टोबैको यूजर्स में होते हैं। टोबैको या तो तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, या फिर स्मोकिंग, इन सब फॉर्म्स में यूज होने वाला किसी भी फॉर्म में जो टोबैको यूज होता है, उसके कारण ओरल कैंसर होता है। और इंडिया में ये इतना ज्यादा कॉमन है, अगर हम देखेंगे तो एज मतलब जैसे लोग बड़े होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपको इस चीज को कंज्यूम करना जरूरी है ना, तभी आप बड़े हुए हो। और वही कारण है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के कारण लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, और उसी के कारण इंडिया में इट इज सो कॉमनली यूज। एंड ये ओरल कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर। तो जैसे मैंने ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के बारे में एक सिम्टम बताया है, ओरल कैंसर के बारे में ओनली वन सिम्टम दैट एवरीबडी शुड नो। मुंह के अंदर 2 हफ्ते के अंदर अगर नहीं कोई छाला भर रहा है तो दैट मे बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर। नॉन हीलिंग अल्सर फॉर मोर देन 2 वीक्स। कोई भी छाला, अगर आप ये कॉमन डे टू डे लाइफ में आपको छाला होगा, आप मेडिसिन लेंगे, यू विल ऑब्जर्व 2 हफ्ते में वो छाला भर जाता है, या आता जाता रहता है, बट कभी भी वो छाला 2 हफ्ते के बियॉन्ड नहीं रहता है। जब कोई भी छाला 2 हफ्ते से ज्यादा अगर रह रहा है, मतलब कि उसमें शक है, खासकर अगर आप तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ मुंह से कोई भी ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, खासकर ब्रशिंग, या फिर आप जब कुल्ला कर रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि कोई ब्लड आ रहा है, आपका कोई दांत बेवजह बिना किसी चोट के अगर आपका दांत हिल रहा है या गिर रहा है, खासकर ओल्डर एज ग्रुप में। उसके अलावा अगर आपका मुंह छोटा होता जा रहा है, आप देख रहे हैं समय के साथ पहले इतना खुलता था फिर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, या गले में कोई भी किसी भी तरह की कोई गठान दिख रही है, ये सब कैंसर के सिम्टम, ओरल कैंसर के सिम्टम्स हैं। एंड इन सब चीजों को आपको बहुत जरूरी है कि इसे आप नजरअंदाज ना करें, और तुरंत किसी भी एक्सपर्ट को जाकर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने बोला कि ये कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स है, एक्सपर्ट को जाके दिखाएं, कौन किसको आप किसको जाके दिखाना चाहिए, और किस तरीके से फिर इसका हम डिटेक्शन करते हैं कि एक कैंसर है या एक नॉर्मल अल्सर है, या क्यों हो रहा है, अगर आप उस पर डिटेक्ट थोड़ा सा तो द बेस्ट एक्सपर्ट, जो बेस्ट पर्सन है, अगर आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं
तो वो सबसे अच्छा रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि अल्सर्स कभी कभी कंफ्यूजिंग रहते हैं और हो सकता है कि डेंटिस्ट आपको वो कंफर्म ना बता पाए, तो बेस्ट पर्सन वुड बी अ कैंसर एक्सपर्ट। अगर आप किसी कैंसर एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं तो वो दे आर द बेस्ट पर्सन जो ये जज करके बता सकते हैं। 95% ऑफ द टाइम हम देख के ही बता पाते हैं कि ये कैंसर जैसा लग रहा है या फिर ये नॉर्मल अल्सर है। हाँ, बट टू कंफर्म कि ये कैंसर ही है या फिर कुछ और है, हम वहां से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं। नाउ पीपल आर अफ्रेड टू गो टू कैंसर एक्सपर्ट, क्योंकि उन्हें लगता है बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करने से शायद कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। तो नो, नॉट एट ऑल। बायोप्सी एक कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है। एक छोटे से टुकड़े हम ओपीडी बेसिस पे ही बायोप्सी लेते हैं, पेशेंट को वहां लोकल एनेस्थीसिया देके वहां से एक टुकड़ा लिया जाता है। इससे कैंसर के स्प्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही कैंसर इससे स्प्रेड होता है। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैंसर डिटेक्शन। आप कंफर्म तभी बता सकते हैं जब किसी पैथोलॉजिस्ट ने देखा हो और उसे बताया हो कि हाँ, इसमें कैंसर के सेल्स दिख रहे हैं। सो बायोप्सी इज द वे जिससे हम इसे कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। और जो भी हम टोबैको यूजर्स रहते हैं उन्हें हम एडवाइस करते हैं एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स आप किसी भी एक कैंसर एक्सपर्ट को जाके अपने को चेक कराएं। उसे ओरल स्क्रीनिंग बोलते हैं। मतलब आप कुछ तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उसे किसी एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो वो बता सकते हैं कि कैंसर के पहले के जो प्री कैंसरस लीजन्स है अगर वो आपको डेवलप हुए हैं, जैसे कि सफेद धब्बे, लाल धब्बे जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, तो हम उसे ही उसी स्टेज में हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बोला कि ये कोई भी अर्ली साइन्स सिम्पटम्स हैं तो प्लीज़ एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग होता है जो अर्ली टेस्ट या डिटेक्शन वो बोल रहे हैं, तो प्लीज़ कराइए। बायोप्सी से मत डरिए, अर्ली डिटेक्शन ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको इन कैंसर से दूर रख सकता है। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अर्ली डिटेक्शन में ये चीज़ें होते हैं, तो किस तरीके से इसका फर्दर ट्रीटमेंट होता है अगर अगर आपको ओरल कैंसर है, या फिर और क्या इसमें इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी क्या चैलेंजेस होते हैं एक पेशेंट को आपके पास अर्ली आने में, क्योंकि अगर अगर कोई छाला नहीं भर रहा है तो एक बहुत पेनफुल होता है, तो क्यों नहीं पेशेंट आपके पास अर्ली आता? सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो भी ये अल्सर्स होते हैं मुंह के अंदर, जो कैंसर के होते हैं, दे आर पेनलेस। दे आर पेनलेस। जो हमें नॉर्मल अल्सर, जैसे हम एप्थस अल्सर, या जो हमें सामान्य व्यक्ति को होते हैं वो पेनफुल होते हैं, इसलिए वो तुरंत जाके कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लेता है। बट जो कैंसर के छाले होते हैं, दे आर पेनलेस टू बिगिन विथ। और यही कारण है कि वो जो पेशेंट है वो उसे नॉर्मल मल्टीविटामिन से लेता रहता है, या फिर किसी को दिखा के कुछ क्रीम्स ट्यूब्स लेके सोचता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। बट वो कभी भी कैंसर एक्सपर्ट के पास नहीं जाता है। दूसरा, उसे सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं कैंसर निकल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरे को ऑपरेशन के लिए बोलेंगे और ये करेंगे, या फिर मेरा तंबाकू छूट जाएगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोगों के मन में रहता है, और वो कभी भी इसके आगे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट हमें उन्हें ये बताना है, देखिए, वी आर नॉट देयर कि आपको तंबाकू छोड़ना है नहीं छोड़ना है। दैट इज योर पर्सनल डिसीजन। व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपकी बॉडी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, आप उन लोगों में से हैं जिन के कारण कैंसर से पहले गए हैं, तो आपको वहीं उसी स्टेप पे रुकना है और उसे तंबाकू को छोड़ना है, या फिर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि हम आगे कैंसर ना होने दें या उसको वहीं के वहीं स्टेप पे रोक दें। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने अपनी अपन ने जैसे 3 तरह के कैंसर्स डिस्कस किए, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर। सबके अपने-अपने डिटेक्शंस हैं, सबके अपने-अपने साइंस एंड सिम्पटम्स हैं। क्या इन तीनों का ट्रीटमेंट मॉड्यूल अलग-अलग होता है, या तीनों का अगर डिटेक्ट करते हैं तो किस तरीके से पेशेंट्स को अगर कैंसर होता है तो किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है? अगर आप ब्रीफ में बता पाएँ, वो कैंसर ट्रीटमेंट किस तरीके से
प्रोग्रेस होता है किसी भी पेशेंट में? ओके। तो जैसे कि अभी हम ओरल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर में अगर आपका डिजीज बहुत ही छोटा है, छोटा सा एक छाला है, तो उसे हम मुंह के अंदर से ही उसे ट्रीट करके, उसे निकाल के, और वहीं की स्किन जो है, हमारे अंदर की जो बकल म्यूकोजा है या टंग है, जबान के अंदर का जो रिमेनिंग है, वो सफिशिएंट होता है कि हम उसे बंद करके, टाके लेके बंद कर दें, और बाकी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई आपको कुछ कैंसर हुआ है या ये हुआ। या फिर कैंसर होने के पहले के जो स्टेजेस है, जैसे कि कुछ लाल धब्बा आया है या फिर सफेद धब्बा है जो कि काफी मोटा हो गया है, हम उसे अंदर के अंदर से निकाल के आपको कैंसर होने से पहले ही उसे ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए कैंसर थोड़ा अंदर गहराई में गया है, तो भी मुंह के अंदर से ही निकाल के उसे लिया जाता है। और क्योंकि इन सेल्स का गले के लिम्फ नोड्स में, यहाँ छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को या फिर किसी भी कैंसर को बॉडी में स्प्रेड होने से रोकते हैं, तो हम उनमें कैंसर जाने का खतरा रहता है, इसलिए उन ग्लैंड्स को भी क्लियर कर देते हैं, और ये मेनली ट्रीटमेंट होता है। तो मुंह के कैंसर का मेन ट्रीटमेंट है सर्जरी। दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप बीमारी को पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा, अगर हमें हड्डी का भाग निकालना है या हमें टंग का भाग निकालना है, अगर हड्डी का भाग निकालना है तो हम पैर की हड्डी से उस हड्डी को पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमको जबान का कुछ पोर्शन निकालना है तो हम हाथ की चमड़ी को लेके वहां पे एक एक्स्ट्रा वो कवरिंग दे सकते हैं, जिससे वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। जो आगे का है, अगर मान लीजिए डिजीज बहुत एडवांस्ड है, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में गया है, तो ही रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सिकाई बोलते हैं। वो सर्जरी के बाद की जाती है। सर्जरी से जब आप पूरी तरीके से रिकवर होते हैं 1 महीने में, तो उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी का बहुत शॉर्ट रोल होता है। जब बहुत ज्यादा एडवांस डिजीज में पेशेंट आते हैं, जिनमें हमें लगता है कि ऑपरेशन शायद संभव नहीं है, तब हम कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। अदरवाइज एज सच कीमोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है ओरल कैंसर में। अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ना हमें रेडिएशन थेरेपी, ना हमें कीमोथेरेपी की जरूरत होगी, और सिर्फ सर्जरी के माध्यम से हम इसे पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। ये तो हुआ मुंह के कैंसर के बाद। देन क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर का। तो ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर आपका डिजीज बहुत छोटा है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी में पूरे ब्रेस्ट को निकालने की जरूरत नहीं होती है। जो गठान है, जो ट्यूमर है, उससे थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एरिया को निकाला जाता है। और जिस तरह मुंह के कैंसर में गले के लिम्फ नोड्स क्लियर किए जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में आर्मपिट्स के आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उन्हें हम स्क्रीन करते हैं या उसे क्लियर कर देते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर का मेनली ट्रीटमेंट है। इसके बाद में अगर बहुत छोटी गठान है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली कीमोथेरेपी। अगर हम ब्रेस्ट बचा के ऑपरेशन करते हैं, तो ब्रेस्ट को रेडिएशन थेरेपी यानी कि सिकाई देना जरूरी है, ताकि बचे हुए ब्रेस्ट में ये कैंसर आने का चांसेस काफी कम हो जाता है। बट ये पूरी तरीके से सेफ प्रोसीजर है, इसमें बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। जैसे ही बीमारी आगे के स्टेज में जाती है, यानी कि सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में जाती है, तो रेडिएशन थेरेपी के साथ में हमें कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जिससे कि आगे कैंसर वापस आने का खतरा कम हो जाता है। तो ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है, जिसमें सर्जरी और साथ में रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, जब अगर बीमारी आगे के स्टेज में है, या कुछ थेरेपी जिसमें हम कुछ आगे, कभी कभी जो एक ट्रिपल नेगेटिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें हमें कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बाकी के ट्रीटमेंट्स उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम सर्विक्स कैंसर की बात करें, तो पहली बात है कि सर्विक्स कैंसर में अगर हम उसे प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वहीं के वहीं सर्विक्स का जो भी अफेक्टेड पोर्शन है, सिर्फ उसको निकाल के हम सर्जरी कर सकते हैं, और पूरा यूट्रस और बाकी सब ऑर्गन्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कोनाइजेशन, या फिर हम उसे, जो भी अफेक्टेड एरिया है उसे हम कॉटरी से जला सकते हैं।
दैट इज द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट, एंड दैट इज वाई हम ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर हम प्री कैंसर स्टेज में उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको वहीं के वहीं ट्रीट कर सकते हैं, और आपको पूरे बहुत बड़ी सर्जरी की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बीमारी फर्स्ट स्टेज में है, यानी कि वहां पे कोई गठान आ गई है, कैंसर आ गया है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी में हम यूट्रस को एक वाइडली उसके आसपास के टिश्यूज के साथ में निकालते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज और आसपास के लिम्फ नोड्स को निकालते हैं। इसे हम रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, और इसे ओपन तरीके से चीरा दे के करना है। सर्विक्स कैंसर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज नहीं की जाती हैं, एंड ये एडवाइजेबल भी नहीं होता है, बिकॉज इससे कैंसर के वापस आने का रिस्क ज्यादा बढ़ता है। सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। अगर बीमारी सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में चली जाती है तो उसमें हम सर्जरी एडवाइज नहीं करते हैं। वहां पे हम रेडिएशन थेरेपी यानी कि सिकाई और उसके साथ में कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे कि ये बीमारी को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली सेकेंड और थर्ड स्टेज का, यानी कि थोड़े से एडवांस स्टेज का सर्विक्स कैंसर का ट्रीटमेंट है। जिस तरीके से सर आपने सारे तीनों कैंसर्स का हमें ट्रीटमेंट बताया कि किस तरीके से हम करते हैं, क्या इस कैंसर एक इंडिविजुअल की बीमारी नहीं होती, एक फैमिली या एक कम्युनिटी की होती है? दी एंटायर फैमिली गेट्स अफेक्टेड एंड दी कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड विद दी जस्ट द आइडिया कि किसी को कैंसर हुआ है। किस तरीके से आप समझते हैं कि एक फैमिली को हेल्प करना चाहिए कैंसर पेशेंट को इस चीज के साथ डील करने में, या एक कम्युनिटी को हेल्प करना चाहिए एक फैमिली को इस चीज के साथ डील करने में? कुछ आपके थॉट्स इसमें? तो देखिए, यस, कैंसर का जस्ट वर्ड सुनते ही मतलब एवरीबडी इज शैटर्ड। हर किसी को लगता है दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, जो हम मूवीज में देखते हैं या जैसा देखते हैं कि बस दिस इज एंड, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। जैसे जैसे आप समय के साथ देख रहे हैं कि लोग पहले डायबिटीज, बीपी, ये सबको एक बहुत खतरनाक बीमारी समझा जाता था। अब हम जानते हैं कि अरे हमारे बीच में मैक्सिमम लोग, कोई डायबिटिक है, कोई बीपी के साथ सफर कर रहा है। समय के साथ कैंसर भी एक ऐसी बीमारी बनने वाली है जिसके साथ आप जीना सीख जाएंगे। इसके इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो पहली चीज है कि हमें ना लोगों को ये समझना है कि इसका इलाज संभव है। पहली चीज तो आपको ये उन्हें समझाना है। कोई भी अननोन पर्सन से उसके एक्सपीरियंसेस या उसके थॉट्स के कारण ओपिनियन लेने से बेटर है एक्सपर्ट से पूछे। आपके जो भी मन में क्वेश्चंस हैं, आप उन एक्सपर्ट से जाके पूछे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ये सुना है, मैंने ऐसा सुना है। और 99% टाइम एक्सपर्ट आपको उसका सही जवाब दे पाएंगे विद डेफिनेट प्रूफ। तो जो भी है, लोगों की कहा सुनी से सुनने से अच्छा है कि आप एक्सपर्ट से जाके पूछें। अगर आपके परिवार में या किसी को, आपके परिचित में किसी को कैंसर डिटेक्शन होता है तो उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें ये बताएं कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम हर समय कोशिश करते हैं अपनी पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज शेयर करने का। जो पेशेंट इस बीमारी से पूरी तरीके से लड़ चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, हम उन लोगों का एग्जाम्पल हमेशा लोगों के सामने शेयर करते हैं। और सभी कैंसर एक प्रकार के नहीं होते, ये आपको समझना बस जरूरी है। आपके किसी नेबर में किसी की कैंसर के कारण मृत्यु हुई हो, किसी को ये हुआ हो, किसी को, जरूरी नहीं है कि आपको भी वही होने वाला है। लोगों को ऐसा लगता है, लोग हाँ जो हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेते हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हर एक कैंसर, अब बॉडी में जो होने वाला कैंसर है वो अलग होता है। ब्रेस्ट कैंसर भी एक महिला के अंदर पूरी तरीके से क्योर हो सकता है, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, जबकि दूसरे महिला के अंदर अगर एडवांस है। क्योंकि ये सब चीजें कॉमन पब्लिक को पता नहीं होता, उन्हें बस इतना पता था मेरे इस रिलेटिव को कैंसर हुआ था इसलिए वो एक्सपायर हो गए, या उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कैंसर अलग है, हर एक पेशेंट अलग है, हर किसी की बॉडी अलग है। सेम थेरेपी किसी के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होती है, किसी के ऊपर कम इफेक्टिव होती है। तो अभी कैंसर बहुत पर्सनलाइज्ड हो गया है, जैसे डायबिटीज की गोलियां हो गई हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग दवाइयां काम करती है, किसी के अंदर ये, किसी के अंदर वो। सेम कैंसर का भी ट्रीटमेंट
अलग अलग है, और हमें पेशेंट को या जिसको जो भी फैमिली है उन्हें भी यही चीज समझानी है कि इसका इलाज संभव है। आप एक्सपर्ट के पास जाइए, इससे भागिए मत, इससे जो प्रूवन है, जिससे हमें पता है कि हाँ ये ठीक करता है, वो इलाज ले, रादर देन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस या जिनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास में। बिल्कुल, बिल्कुल। So, sir, आकांक्षा जी पूछे कि are there cases where after chemotherapy surgeries become difficult? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि आर देयर, इट डिपेंड्स ऑन आप किस कैंसर की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कीमोथेरेपी हमें थोड़ी मदद कर देता है, ट्यूमर को छोटा करने में मदद करता है। खासकर अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर में कुछ केसेस में हम कीमोथेरेपी देते ही हैं, खासकर जिसे हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। इनमें हम कैंसर के सर्जरी करने से पहले हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं। इससे हमें दो चीजें पता होती हैं। एक कि हम कीमोथेरेपी का पेशेंट के ऊपर कितना असर हो रहा है। अगर ट्यूमर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, पूरा गायब हो गया है, तो हमें ये पता है कि ये पेशेंट्स ज्यादा अच्छे, ज्यादा लंबे समय जीने वाले हैं, या इनका प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज है, जिन लोगों में ये ट्यूमर रह जाता है उन्हें हम सर्जरी के बाद में दवाइयां देते हैं, जैसे हम केपसाइटाबीन का दवाइयां बोलते हैं, वो हम उन्हें देते हैं। तो कुछ कैंसर्स में हम डेलिबरेटली कीमोथेरेपी दी जाती है, ताकि हम उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें ऑपरेशन में सहूलियत मिल जाती है। इन जनरल शायद आज से हम 15-20 साल पहले बोल सकते थे कि कीमोथेरेपी के कारण हमें सर्जरी में प्रॉब्लम होती है, बट इन मॉडर्न एरा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो हमारी सर्जिकल टेक्निक्स हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं, या हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं सर्जरीज में, कि हमें कीमोथेरेपी के कारण कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, हमें कुछ समय वेट करना जरूरी है, 2 to 3 weeks डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा कीमोथेरेपी दे रहे हैं। तो हमें कुछ समय वेट करना है बिफोर वी डू द सर्जरी। बट ओवरऑल, इन जनरल कीमोथेरेपी के बाद में सर्जरीज एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। बिल्कुल। सो आई होप आकांक्षा जी आपका ये क्वेश्चंस आंसर हो चुका हो। सो साथ ही साथ लास्टली जिस तरीके से आपने बोला कि कीमोथेरेपी हेल्प करता है प्रीवियसली सर्जरी के, एनीथिंग एल्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कैंसर से रिलेटेड, या उसके जो आप रेगुलरली ओपीडी में अपने पेशेंट्स में देखते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं लेमैन के साथ? तो मतलब एक तो रीसेंट एडवांसमेंट जो अभी हमने देखा है, दैट इज समथिंग विच एवरीबडी शुड नो। एंड उसके साथ कुछ मतलब कुछ मिथ भी है एंड कुछ प्रॉब्लम भी है। तो एक जो नया एडवांसमेंट हमने देखा है, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। अगर हम थेरेपीज में बात करें, तो इन जनरल कीमोथेरेपी से लोगों को ये डर रहता है कि बाल उड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, पेशेंट टॉलरेट करेंगे नहीं करेंगे। तो इम्यूनोथेरेपी जो आया है, बेसिकली वो क्या करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कैंसर के बारे में अवेयर करता है कि देखिए यहाँ कैंसर छुपा हुआ है, गो एंड फाइट इट। जब भी नॉर्मल कैंसर सेल्स क्या करते हैं, कीमोथेरेपी जो अपनी इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनसे छुप के बैठे रहते हैं, इम्यूनोथेरेपी उन्हीं सेल्स को एक्सपोज कर देता है। तो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग इन इन फ्यूचर। मतलब अभी मेजोरिटी ऑफ द कैंसर्स में हम इम्यूनोथेरेपी का रोल देख रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ऐसा लगता है कि मैक्सिमम कीमोथेरेपी विल बी रिप्लेस्ड बाय इम्यूनोथेरेपी, जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, विच इज वेरी वेल टॉलरेटेड। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा जो हम सर्जिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि कम से कम, जैसे पहले ऐसा माना जाता था कैंसर हुआ है उस पार्ट को पूरा निकाल दो, फेंक दो, उसके आसपास के एरिया को भी पूरा निकाल दो, या बहुत खतरनाक सर्जरीज हुआ करती थी। अभी हमारे पास ऑर्गन कंजर्वेशन, ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज बहुत कॉमन है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके उस भाग को कैंसर हुआ तो उसे पूरा का पूरा निकालना जरूरी है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम उस ऑर्गन को प्रिजर्व कर सकते हैं, या उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कैंसर सर्जरीज आर मच मोर सेफर नाउ। हमारे पास लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, जिसमें बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स के थ्रू हम ये सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो
these are the two advancements जो कि अभी समय के साथ हुए हैं, और हम हर दिन कुछ न कुछ बेहतर ढूंढ रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में. इट इज बिकमिंग मच मच सेफर, बेटर टॉलरेटेड. आज से 20 साल पहले डायबिटीज के लिए सिर्फ इंसुलिन हुआ करता था. आज हमारे पास ऐसी इतनी बेस्ट दवाइयां हैं जिससे सीवियर डायबिटीज भी बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है. सेम वे पहले कैंसर सर्जरीज एंड कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ही टफ होता था, बहुत कम लोग ही उसको ले पाते थे. बट इन मॉडर्न एरा मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स उसको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं, और हम हर दिन हर पेशेंट को जितना कम से कम प्रॉब्लम हो, जितना कम से कम साइड इफेक्ट्स हो, हम उस पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस एक बीमारी के लिए हम जितना सेफ ट्रीटमेंट डेवलप कर सके उतना हम कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल सर, इट्स नाइस टू नो कि किस तरीके से प्रोग्रेशन हो रहा है आजकल की कैंसर थेरेपीज में, कैंसर ट्रीटमेंट्स में. डॉक्टर संजीव भी आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि क्या फ्यूचर है कैंसर ट्रीटमेंट का, एंड थैंक यू सो मच, आपने इसके बारे में हमें डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या होता है. एंड थैंक यू सो मच सर, आज हमें इतना डिटेल में 3 मेजर मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके की कैंसर्स मेन और वुमेन को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने आप को बताने चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को बेसिक प्रिकॉशनरी साइंस एंड सिम्टम्स से आप इजी डिटेक्शन कर सकते हैं. हमारी तरफ से सर एक छोटा सा टोकन, एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से आपके लिए, जस्ट फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सर, और हमारे लिए इतना टाइम हमारे साथ इतना डिस्कस करने के लिए. थैंक यू सो मच. इतना अच्छा डिस्कशन और हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिसमें हम लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ हम हमारे इस एक टॉपिक के लिए, बस माय ओनली मैसेज इज आप कैंसर के बारे में जाने, इससे भागे नहीं. इसके सिम्टम्स, इसके जो ट्रीटमेंट, इसके बारे में लोगों से वेरियस चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स हैं, डॉक्टर्स के वीडियोस हैं, है ना, या फिर आप डॉक्टर से जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. इस चीज से भागे नहीं, है ना. आप भाग के कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर आपको होना है तो होगा ही होगा. आप उसके लिए प्रिकॉशंस ले, उसके बारे में जाने, जितना हेल्दी हो सकता है उतनी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें. That is what we can do to protect ourselves from cancer. हम हर कोई इस चीज से डरता है, बट what we can do, जो हमारे हाथ में है, हमें वो करना चाहिए. हमें सही इंफॉर्मेशन एंड उसके लिए जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो लेना चाहिए. That is all my message to all the audience. Thank you so much for having me here, and it was a great show. Thank you so much sir for joining us, और ये सारे points बताने के लिए. Thank you so much everyone for joining us here today. That's all for today's episode of Dr. KK Med Talks. Thank you so much. धन्यवाद. Thank you.